ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। परम सन्मान योग जुगहो जुग अटल सतगुरु, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहया भरपूर। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी रहमत बख्शिश दे पात्र बन के आप जी संगती रूप विच गुरु चरना विच जुड़ के बैठे हो। इलाही धुर की अमृत गुरबाणी दा कीर्तन भाई बलजिंदर सिंह जी पहेवे वाले उन्हां पासों आप जियां ने सरवण कीता है और अमृत बाणी दी जो लड़ीवार विचार चल रही है, जो विचार अधीन पवित्र शब्द पिछले 2 दीवाना विच आपां विचारिया है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहिब जी दे ए अमृत बचन ने राग तनासरी विच फिरत फिरत भेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया। आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम त्याया। रात आपां
गुरु के ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤੇ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਖੰਸ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਲਈ ਉਲਾਮੇ ਸਖੇੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਲਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਇਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਲਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ, ਉਸ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਦ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਦਾਰ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਸ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦਗੀ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਖੰਸ। ਰਾਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਲਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਬੇੜਾ ਲੇਖਾਂ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ।
अंत नबेड़ा तेरी जिंद ने तेरे जी ने करना है। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਵਾਂ ਭਾਗ ਗਏ। ਲੇਖਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਵਾਂ ਭਾਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਖਾਈ ਬਣਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਖਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਖਾਈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਸੱਜਣ ਸਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸਖਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿੰਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਤੂੰ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਕੰਸ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਖੰਸ। ਕਰੰਗੀ ਮੁਰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਰੰਗ ਖੱਡੀਆਂ ਚੂੰਡਣੀਆਂ, ਲੱਗਾ ਖੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹੰਸ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੰਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਏ। ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਨਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਪਰ ਕਰਮ ਹੰਸ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੰਸ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੰਸ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ, ਮਾਨਕ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਰੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਾ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਲਾ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਲ ਧੋ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਲੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੱਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ। ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਰੱਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ?
महाराज ने शब्द वरते, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। किवें उन्हां दे चित निर्मल हो सकदे, किवें वो चित निर्मल होणगे। महाराज कहंदे जिहड़े लोकां दा लहू पीवी जांदे ने, जां असीं बचन पढ़ने आ, साहब कहण लगे कि जे गुरु पीर तेरी खामी विच खलोते ने, तू कहना मेरा गुरु मेरी राखी करेगा। महाराज ने आवाज मार के क्या कहंदे, चेते रखियो गुरु खामी जरूर भरदे ने, रखिया जरूर करदे ने। हक पराया नानका उस सूवर उस गाय, मुर्दा खान दे तोले कोई भी होवे। महाराज कहंदे जे पराया हक खांदा है, मत कोई कवे कि मैं गां जां सूर नहीं खांदा। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहंदे जिहड़े लोकां दा लहू पींदे पे ने मुर्दे खाई जांदे ने, क्यों नहीं खांदे पे। हक पराया नानका उस सूवर उस गाय, गुर पीर खामा तां भरे। तेरे गुरु पीर भी गुरु दाता भी तेरी खामी तां भरनगे जे तू उन्हां दे कहे विच होवेगा, जे कहने विच नहीं। गुर पीर खामा तां भरे जां मुर्दार ना खाए। जे तू पराया हक ना खादा, मुर्दा ना खादा, ते गुरु भी कहेगा ये मेरा है। जे तू गुरु दे कहे तो बाहर तुर पिया, फिर गुरु किवें कहेगा कि मेरा है। फिर मेरी बेनती, मैं एक बेनती होर करां जी कि इनू इस तरीके नाल समझो, मैनू बख्शो थोड़ा जिहा शब्द देखो जे मैं वरतन लगा। मान लो स्वरूप सिक्खी दा बन गया, पर मैं नहीं बेनती करन लगा प्यारो, मेरी बेनती समझो, ये स्वरूप बड़ा मखान जे। मैं नहीं कह रहा भी स्वरूप हुण ये भी गलत है। जदों असीं कहने भी मेरे वर्गा कोई माड़ा मिल जाता है, असीं कहना जी वेखे ने जिहड़े अमृत धारी ते जिन्ना केस रखे हुए ने माड़े कर्म बड़े करदे ने। प्यारो तुसीं उन्हां नूं माड़ियां नूं ना देखो, तुसीं चंगी मिसाल कायम करके दसो भी सिख दी परिभाषा ये वे। ये तां अपने मन की कमजोरी है। असीं कह दिता भी नहीं जी अमृतधारी भी वेखे ने, साबत सूरत भी वेखे ने, जिहड़े वो कर्म करदे उन्हां नालों चंगे असीं बिल्कुल नहीं। जे तुहानूं पता है तो तुसीं एक मिसाल कायम करके दिखाओ भी सिख दी परिभाषा है। मैं बेनती करा कि जे स्वरूप बन जाए, मान लो अंदर दी बिरती तब्दील नहीं होई, सवेरे उठ के नितनेम भी कर लिया, थोड़ा जा विचार ना पवेगा इस चीज नूं भी, बाणी भी पढ़ लई ते सारा दिन बंदे ने झूठ भी रज के बोलिया, निंदिया भी रज के कीती, जदों दा लगा उदों कैंची भी रज के चलाई, छुरी भी रज के वाई, ते की उथे वो कहेगा भी मैं धर्मी बन गया। वो धर्मी का किरदार आप कह सकने, मैनू खिमा करियो, कि उथों गुरसिख की परिभाषा या गुरसिखी की खुशबू निकलेगी नहीं। खिमा करियो, जेकर अद्धा घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 24 घंटिया दे विचों तू धर्म लई कमा कढना ते बाकी दे 22 घंटिया दे करीब 20 घंटे ही ला लो तू पाप कर्म माड़े कमान विच कढण दिया। मत सोची मैं धर्मी जां गुरसिख बन गया। खिमा करियो, गल खाली बड़ी दूर पई है। एक अदीब ने गल बड़ी खासे विच, वो 2 कुछ सतरां ने, उन्हें पते की बात की उहदे विच वैसे उन्हें लिखिया सी, हिंदी दियां लाइनां ने, मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेते हैं, कहंदे ने असी मंदिर भी उठ जाने, उंजे पंक्तियां नोदियां, सुबह उठकर जाप भी कर लेते हैं, मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेते हैं, शैतान इंसान से कहीं भगवान ना बन जाएं इसलिए थोड़ा पाप भी कर लेते हैं। कहता बंदे दी फितरत ते आ बनी, इनू पूछो भी तू सवेरे जपता भी कीता ते झूठ क्यों बोली जा रहा है, निंदक क्यों बनया बैठा, तू पाप क्यों करना पिया, तेरा ते धर्म वाल मार गए, तू ते धर्म कमान तुरिया है। ते बंदा हासे विच कहंदा मैं सोचिया रब ही ना बन जी, थोड़े बहुते पाप भी करने चाहिए, कि किते ये कर्म तां नहीं बन चुका। महाराज कहंदे इहदा कर्म तां सी है हंस, ए जीव है हंस,
ते हंस दी खुराक एदा भोजन है नाम रतन चुनने। कहते तुर किधर पिया हंस रतन छड्ड के, ये मुरदार खान तुर पिया सिबत सलाहण छड्ड के, करंगी लगा हंस। ते शब्द नूं ठरमे नाल सुनियो महाराज कहते कोई भी होवेगा जे ये कर्म उहदे जीवन विच है, जिहड़ा इस श्लोक विच गुरु नानक साहब कह रहे ने कि 100 उलामे दिनै के राती मिलन सखंस। हुण ये ना क्यों भी ये पंक्तियां, क्योंकि साडे शब्द सुभाਅ ऐसा बन जाता है जदों असीं एवें दे शब्द सुनने असीं अपने तो नहीं कहना दूजे नूं कह रहे ने गुरु साहब, दूजे दी गल चलदी नहीं। खिमा करो अपने ते मुलांकन ले नरजामन तोलै देव। गुरु दे शब्द दी तकड़ी लैके तू अपने मन नूं तोलिया कर, किसे वल ना इशारा कर भी ये पंक्तियां किसे लई आउणगियां। जदों गुरु दा कोई शब्द पढ़ना सुनना नाम दी गल हुंदी है, तू शब्द दी तकड़ी लैके अपने मन नूं तोलिया कर कि तेरा मन कित्थे खलोता है जो गुरु साहब कह रहे हैं। तू कित्थे खड़ा होया गुरु दियां ना पंक्तियां अनुसार। 100 उलामे दिनै के राती मिलन सखंस, सिबत सलाहण छड्ड के, करंगी लगा हंस। कोई भी होवे तू कदी मन नूं तोल के देख कि तेरे जीवन दे एक कर्म तां नहीं, जे कर्म कहण ते मेरे गुरु नानक साहब कहंदे ने फिट अवेखा जीविया जित खाए वधाया पेट। फिट फिटकार अवेखा जीविया, इहो जिहा जीवन एक फिटकार बन जाता है जिहड़ा बाहरों धर्मी भी बनता है ते कुकर्मी भी है अंदरों। फिट अवेखा जीविया जित खाए वधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सब दुश्मन खेत। मैं रात बेनती की से मैं पूरी कर देना। सिख दे जीवन की परिभाषा प्यारो कला भेख नहीं, इहदियां कुछ निशानियां ध्यान रखियो। जदों सिक्खी स्वरूप विच होवे ओदी जिम्मेवारी वध जांदी है, इस करके क्योंकि मैं जेड़ा भी कर्म करांगा चंगा करांगा तां भी कहणगे सिख इहो जे हुंदे ने, ते जे मंदा कर गया मेरा कल्ले दा नाम बदनाम नहीं होना। ये उलामा तां इस स्वरूप वाले पूरी कौम नूं जावेगा। फिर मैं बेनती करा, भाई तारू सिंह जी दा आप जीवन पढ़दे हो, 4 चीज़ां ने रफ्तार, गुफ्तार, किरदार और दस्तार। रफ्तार दा संबंध है साडी तोर नाल, साडे चलण नाल। गुफ्तार गुफ्तगू गलबात नाल, साडे शब्दां नाल। किरदार साडे जीवन दा साडा करैक्टर, साडे जत ते सत दी गल। ते दस्तार दा संबंध साडे सिर नाल, साडी दस्तार नाल। असल विच ये 4 चीज़ां सिख दे जीवन की व्याख्या कर जांदियां। ओदी रफ्तार भी व्याख्या करदी भी गुरु दा सिख है। ओदी तोर भी मंदे पासे कदम नहीं चलते, चंगे पासे कदम चलते ने। उत्थों भी पता लगता भी सिख है दा कदम धर्म लई उठदा, कुकर्म लई नहीं उठदा। मैं बाणी चो एक फरमान दे देना, न विलंब धर्मंग। ये रफ्तार है, ये तोर है सिख दी। न विलंब धर्मंग विलंब पापंग दृढ़ंत नामंग। वो धर्म कमान लगा चाह नाल तुरदा है, पाप दे रस्ते ते तुरदा नहीं, अपने कदमां नूं रोक लैंदा है। होवे गुरु का सिख, राह मंदा चुन ले ते मंदे पासे तुरिया जाए, खिमा करियो वो भी उहदे जीवन विच उलामा बन जाएगा। फिर दूजी गल आउंदी गुप्तार, गुप्तगू गलबात। तेरे शब्दां विचों इन्नी जुबान तो खुशबू इन्नी निकले, तेरे बोल सुन के गुरु दी याद आ जाए। तेरे शब्दां दे विचों गुरु बोलदा होवे, इस रसना ते गुरु बोलदे होण, प्रभ जी बसै। साध की रसना तेरी ते गुप्त गूं विच भी रब वरतदा है। इस सिख दी जुबान है। किरदार तेरा जीवन, तेरा करैक्टर, तेरे जीवन दे विच जत ते सत इन्ना पक्का होवे, किते खलोता होवे ते लोक मान नाल ये गल कह सकण
ये गुरु नानक दा, गुरु गोबिंद सिंह दा सिख खलोता है, इहदे हुंदियां साडी इज्जत महफूज है। तेरी दस्तार सिर लै जाए, खिमा करियो पर ये झुके अन पासे कदी ना। भाई तारू सिंह दा जदों जीवन पढ़ीदा, भाई साहब दा पूले पिंड दे वसनीक ने, इन्हां दे पिंड विच पट्टी दा हाकम आया, इन्हां दे पिंड दे रहन वाले ने रहीम बख्श भाई तारू सिंह दे। इस दी धी नूं चुक के लै गया पट्टी दा हाकम। हुण बाप कुरलाया पर पेश कोई ना गई, पर वो बच्ची नूं डरांदा है, मनांदा है, पर वो सिदक विच कायम सी। इन्हें तरले पाए, जकरिए कोल गया, किसे ना सुनवाया सुनी गल। इहदी धी ने इक्को गल कही सी, अबू तू फिक्र ना कर, मैं मर जावांगी पर ईमान तो नहीं डोलांगी, पर इक्को टेक है, जे तू जा सकना ते उन्हां कोल जा। कहंदा मैं लाहौर दरबार तक जा आया धीए, कहंदी किसे ने तेरी बांह नहीं पड़नी, तू गुरसिखां नूं लभ, भाई तारू सिंह कोल चला जा, जे गुरु के खालसे दे कोल तेरी बेनती चलेगी, तेरी बांह जरूर फड़नगे। जे मैनू इथों कोई बचा सकदा ते केवल एक सिख ने। भाई साहब जी दी उस वेले सोए बड़ी सी भाई तारू सिंह जी दी। ये भाई तारू सिंह कोल गए, भाई साहब नूं पता लगा, उन्हां नूं पता लगा, पहले शब्द वरते रहीम बख्श नूं, कहंदे ने फिक्र ना कर, वो तेरी धी नहीं, इस पिंड दी धी है, साडी भी वो भैन है। हुण तेरी इज्जत नहीं रही कली, ओदी गुफ्तगू, ओदी गल बात विचों भी गुरु गोबिंद सिंह दी झलक पई। सिख दी जुबान ने उस डोले होए प्यो नूं धीरज दे दिता। कहंदे फिक्र ना कर, तू पुकार कीती गुरु नानक दे घर। भाई तारू सिंह तरवास देंदे ने, इक्को दम भाई साहब उठे ने, खालसे नूं इकट्ठियां करके दसन लई बना वल गए, तुरे उथों। प्यारिओ वो तुरिया इन्नी तेज, ऐ दौड़े जांदे ने भाई तारू सिंह, ते ओदी रफ्तार की इशारा करदी पई सी कि भाई तारू सिंह दे परिवार ते कोई मुसीबत आ गई, कि भाई तारू सिंह दे घर कोई विपता आ गई, अपनी जान बचाने लई भजन दे। ओदी तोर कह रही सी, अज गुरसिख तुरिया जांदा है, इहदे अंदर एक जज्बा है, इहदे अंदर एक तड़प है। वो तड़प ये भी मेरे घर गुरु नानक दे कोई फरियादी आया है, मैं जिन्नी छेती हो सके अपने गुरसिखां नूं, सिंघां नूं इकट्ठियां करके दी मदद कर दवां। ओदी रफ्तार भी झलकारा दे रही गुरु गोबिंद सिंह दा। जदों गया गुरु के सिखां नूं, खालसे नूं सोए मिली सारी, सिंघां इकट्ठियां होके धावा बोलिया, पट्टी दे हाकम नूं सोधिया, इहदे कोलों रहीम बख्श दी धी नूं छुड़ा लिआंदा। हुण भाई तारू सिंह उस बच्ची नूं लैके रहीम बख्श दे घर जांदा पिया है। इथों भाई तारू सिंह दे किरदार दी झलक पैंदी पई है, इथों खालसे दे सिखां दे किरदार दी झलक पई। सिख दा जीवन किहो जिहा है, वो धी नूं लैके घर जांदा रहीम बख्श कोल, ते रहीम बख्श इथों तक वो पग भी सिर दी लाण लगदा है। भाई साहब ने बरजता नहीं, ये तां मेरे गुरु ने सिखाया सानू। प्यारो मैं होर बेनती करां, असी पढ़ने ना जी, अखान बने हुए ने, आगे ने निखंग बूहे खोल दे निसंग, जां असी ये भी शब्द पढ़ने, शई बाबा शई रन बसरे नूं गई, मोड़ी बाबा डांग वाले आवे, मोड़ी बाबा कच्छ वाले। क्यों क्या जांदा सी, क्यों क्या भी आगे निखंग बूहे खोल दे निसंग। ये शब्द सी खालसे दे बोले लई कि हुण गुरु गोबिंद सिंह दा सिख खालसा साडे घर आ गया, ऐ बेफिक्री विच सोवो, क्योंकि जिथे गुरु दा सिख आ गया उत्थे हुण बैठिया सानू भै कोई नहीं, साडी इज्जत दा राखा आ गया है। जिथे सिख चला जाए फिर उन्हें यह भी शब्द कह भी, मोड़ी बाबा डांग वालिया वे मोड़ी बाबा कच्छ वालिया। डांग ताकत, कच्छ दा संबंध कशहरे नाल,
कल भी मैं बेनती की सी, उन्होंने पता सी जदों अबदाली दुरानी लुटते ने आके नादर वर्गे खला करते हैं ते बहु बेटियां नूं कैद पा के लुट के लिजाण लगते ने, खालसे कोल लोग फरियाद करते ने, मोड़ो रखो साडी पत बचाओ। वो इस करके फरियाद की जाती सी कि खालसे दे कोल ताकत भी, इहदी डांग विच भी बल जोर है, ते दूजी गल ये भी ने भी ये धाड़वी ने, इहदी डांग विच ताकत है, पर धर्मी बड़े ने, एक शहरे दे बड़े पक्के ने, साडियां इज्जतां नूं बचा के इज्जत सेती घर पहुंचाणगे। उन्होंने भी भरोसा सी भी खालसे की परिभाषा ये वे, इहदे जीवन का झलकारा ही इहो जिहा है। उन्होंने पता सी भी इहदी डांग विच भी ताकत है, ते एक शहरे जत सत दे भी बड़े पक्के ने। मैं बेनती कर रहा सा, भाई तारू सिंह दे इथों किरदार की झलक पई, सिख दे किरदार की भी, सिख दा जीवन इहो जिहा। अगली गल कि जदों दस्तार की गल आउंदी, भाई साहब दा खोपर तां लै जांदा पर ईन नहीं मनदे पए। कि जिन्ना पुरखियां दा, जिन्ना बाबियां दा असीं इतिहास पढ़ने कि अज मुलांकन करके मैं फिर उस पंक्ति ते आवां, ले नरजा मन तोलै देव। अज उन्हां दा मुलांकन करके मन दा देखो कि उन्हां दे पाए पूरनियां ते तुर रहे हैं, कि ओहो जिहा साडे कोल अंदर धर्म है, कि ओहो जिहा साडे जीवन दे विच कोई निक्का जिहा थोड़ा जिहा झलकारा मिलदा है कि नहीं मिलदा। खिमा करियो, साडे अंदर दा दुख ही ये बन चुका है, अज असी जिन्ना जोर बाहरों जुबान करके लाने, खिमा करियो जे सिख धर्म कमान लई अध्यात्मक रुखानियत ते तुर के पांधी हो जाए, जे अंदर सच होवेगा ते किवें सिर झुक जाएगा किसी अगे। इहदा मतलब कमजोरी ही साडे अंदरां च। अंदर सच्चा गुरु होवेगा, किवें कोई लालच करके ईमान धर्म बेच देगा। इहदा मतलब साडे अंदर गुरु है ही नहीं, गुरु की गल ही नहीं वसी कोई। जे गुरु नूं आगू जान के तुरदे होवांगे, जे सतगुरु दा शब्द साडे अंदर होवेगा, ते प्यारिओ किवें फिर असीं खुशामदी बन जावांगे, वक्ती लोकां दे नहीं बनांगे। जे अंदर एक सच आ गया, नाम आ गया, अंदरों लोभ लालच भी जाएगा, खुशामद भी मिटेगी, झूठ भी मिटेगा, पर जे अंदर सच्चा नाम नहीं, महाराज कहते सिबत सलाखन छड्ड के करंगी लगा खंस, फिट अवेखा जीव्या जित खाए वधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन, हित फिर नाम तो बिना ता वैरी ने ना। तन गुरु ग्रंथ साहिब कह लगे, कोट बिगन तिस लागते जिसनों बिसरै नाओ, करोड़ा बिगन सेड़ लैंदा जिन्हों गुरु भुल जांदा है। नानक अण दिन बिलपते ज्यों सुंझै घर काओ, जिवें खाली घर सखने घर दे विच कां लाउंदा है, उथों की मिलना कां नूं। कहंदे इस तरह लाउंदे ही तुर जांदे ने, प्राप्त कुछ भी नहीं हुंदा जे नाम नहीं। कां बनेरे बैठा सारा दिन लाउंदा रहे, बोलदा रहे, ये घर ही अंदर कुछ नहीं ते मिलना की है। कहंदे सारी जिंदगी कां तरह रौला पांदा तुर जाना, पल्ले कुछ नहीं पैंदा। कोट बिगन तिस लागते जिसनों बिसरै नाओ, नानक अण दिन बिलपते जो सुंझै घर काओ। जे सिक्खी दी परिभाषा देखनी है ते भाई तारू सिंह नूं देख। जे सिख बनना है ते अपने जीवन विच पहला गल शुरू इस हिरदे तो कर। इथों तुरेगा ते गल बननी। खिमा करियो, जिन्ना मर्जी कूक लो, रौला पा लो, मैं फिर बेनती करा, जे अंदर सच आ गया, बंदा कला भी खलोता होवेगा, खोपर ले जाएगा, पर चुका झुकेगा नहीं, खुशामदी नहीं होवेगा, समझौता नहीं करेगा, लालच विच नहीं आएगा। फिर सानू नहीं कहना पएगा भी साडा आगू इहो जिहा होवे। जे सच्चा अंदर सच वरत गया तो यह हो ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जिहदे अंदर धर्म ईमान सच होवे, किते विक जावे जां समझौता कर जाए, विकदे झुकदे लालचां विच ही वो पैंदे ने जदों अंदर गुरु नहीं। धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस शब्द विच अगे बख्शिश की। मैं अगलेरी बेनती कर दियां, जे नाम आ गया चीत आवे तां महा आनंद।
चीत आवे तां सब दुख भंज, जे चेते आ गया मां आनंद बन गया। जिस तू आवे चित तिसनों सदा सुख, जिस तू आवे चित तिस जम नाहे दुख। जिन्हों चेते आ गया उहदे घर दे विच सदा सुख है। जिन्हों चेते आ गया जामा दुख जम नेड़े नहीं कदी टुकदे। जिस तू आवे चित तिस नूं सदा सुख, जिस तू आवे चित तिस जम नाए दुख। जिस तू आवे चित तिसै कै काढ़िया, जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। जिहदा करता ही सज्जन बन जे फिर सारे काज रास ने। गुरु अर्जन साहब अगलेरी पंक्ति विच कह रहे ने, महाराज कहंदे ने ताते मोहे धारी ओट गोपाल। यही कारण भी हुण मैं गोपाल, गो मीज धरती, पाल पालना करन वाला परमात्मा। इस करके तां करके हुण मैं, क्यों? क्योंकि मैनूं समझ पई है कि आन सगल विद काम ना आवे। कुछ भी काम नहीं, खर खर नाम ध्याया, नाम ही सिमरिया, यही सहाईए। तां ते मोए धारी ओट गोपाल। इस करके मैं गुरु दी ओट विच आ गया, प्रभु दी ओट विच। उन ओट तकी शरण परियो, पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल। मेरे सारे जंजाल बिनस गए माया दे जदों पूरे दी शरण आ गया। महाराज कह लगे सुरग मिरत पयाल। सुरग देव लोग, मिरत आमात लोग, पयाल पताल लोग। तीन लोगों की गल की। सुरग मिरत पयाल भू मंडल, जिन्ना भी ये मृत मंडल है सारा ही। सगल व्यापे माए, कहते सारी माए दा अर्थ इत्थे माया, सारे माया विच ही खचत होए पए ने। मैं उदन व्यर्थ किते, कई रूपां विच व्यापी बैठी है माया। अखर आउंदा साडा सिर्फ पैसे वल ध्यान जांदा है। नहीं प्यारो, खारो चीज पुत्र धी संसार संबंध कार विकार मुकदी गल, जिदे करके अंदरों गुण चले जान रब भुल जाए। हर चीज माया एक छलावा है। माया का अर्थ ने छल, वो छलावा जिदे करके रब भुल जाए। कहते सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल ताਰਨ, खर खर नाम ध्याए। अपने जी दा जिंद दा भला करन लई, कुलां दा भला करन लई, हे जीव तू एक नाम नूं ध्या। नानक नाम निरंजन गाइया है, पाईए सर्ब निधाना। इस करके निरंजन जिहड़ा कालक तो रहत उहदे नाम नूं ध्याओ, पाईए सर्ब निधाना। सारे खजाने प्राप्त हो जाणगे। कर किरपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना। जिहदे ते गुरु किरपा करदे उहनूं इह दात मिलदी, किसे विरले ने इस सच्चे नाम नूं जाणिया। जाल मोह कस मस कर। महाराज कहंदे मोह नूं साड़, इनू घसा के मस मस मीज शाही, इनू शाही बना लै। जाल मोह घस मस कर, मत कागद कर सार, मत नू कागज बना। भाओ कलम प्रेम नू कलम बना लै। भाओ कलम कर चित लिखारी, चित नू लिखारी बना। जाल मोह घस मस कर, मत कागद कर सार। भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। गुरु नू पुछ के लिखना शुरू कर। की लिख? लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत ना पारावार। बाबा ये लेखा लिख जान। महाराज कहते तू लिख, नाम लिख, सिवत लिख। जिन्हें कदी बिनसना नहीं, अपने हिरदे विच चित विच गुरु नू पुछ के तू नाम लिख लै। ये नाम तेरे जी दा सखाई है। सतगुरु किरपा करन, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, बेअंत होइयां भुलां बख्श देनियां। सतगुरु तरस करन, जिथे असीं गुफ्तार दे पूरे हाँ, गुफ्तगू दे, सतगुरु साडे किरदार विच भी सानू पूरियां कर देन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।